Yes, sir. Okay, so this is a topic I note down here. Today we are going to discuss correction due to earth curvature and refraction refraction of earth atmosphere. Okay, so first we we take two types of survey. The first one is your simple survey and another one is your geodetic surveying. Okay, what is the difference between these two type of survey? The main difference between these two type of survey is that in geodetic survey we consider curvature curvature of earth for surveying purpose. Is it clear? But in simple surveying we doesn't care about the shape of earth for our surveying purpose. It's mean we take in simple surveying we assume that our ground surface is your flat. Okay, so in that case we have two terms. Okay, so first terms is level line and another is horizontal line. So what is the difference between these two? Okay, I will tell you. Suppose this is your earth. Okay, from this point you are going to take your surveying work. So the line which is goes straight is known as your horizontal line. Okay, or surface or surface which is along this horizontal line is known as horizontal surface. Is it clear? Yes, now sir. now what is the level line? Level line, see, this is the center of earth. So here we have radius. Similarly, radius of earth in all direction. So this much be your small h, or you can say this is the height of your instrument. So take height of instrument here also. This is a small h. Again, this is a small h. At this point, you have a height of instrument. To connecting these points having same elevation, if you connect these points which have same elevation of small h, then this line is known as your level line. Okay, and the surface along this line is known as your level surface. Okay, so in geodetic survey, because you are taking the curvature of earth for your surveying purpose, that's why your horizontal line and level line is not parallel. Okay, so you can understand this concept from this figure. But in case of simple survey or normal survey, the horizontal, suppose I take this is your ground level, this is my ground level. At the ground level, this ground level may be undular. Okay, don't take Hmm. this is a straight, this may be undular like this. And if I put my instrument like this, so this is the green color shows your level line. Okay, so I think this is a level line. And if you draw your horizontal line, this follow the same path in the both direction. So again, this is your horizontal line. So in case of simple surveying, your horizontal line and your level line assumed to be parallel. Okay, I, Yes, sir. Yes, I, sir. I think now you can classify what is the difference between simple surveying and geodetic survey in case of application portion. Now, now what is the problem of this thing in your surveying purpose? Whenever you are taking this simple survey,
you are not going to take any correction for curvature of earth, but in case of geodetic survey you have a correction for curvature of earth like this. You are going to take h height from point A to point C. This is your C point. Okay, you are going to locate the C point which is height h and h is the height of your instrument. ठीक है, लेबलिंग में हमने ये पढ़ा था height of instrument, and the another method is rise and fall method. But here telescope gives the range of this much. तो टेलीस्कोप तो आपको यहाँ दिखा रहा है, ठीक है. सो दिस पॉइंट आई टेक एज बी पॉइंट. ठीक है, तो टेलीस्कोप से आप बी पॉइंट देख रहे हो, लेकिन आपको देखना कितना पॉइंट चाहिए था, सी पॉइंट देखना चाहिए था, बिकॉज सी पॉइंट पे आपका, तो मतलब करेक्शन कितना करना पड़ेगा यहाँ पे. इन दिस केस आई कैन से दैट बी सी, दिस बी सी इज माई एरर, this BC is my error, hence correction is the vice versa of error. We can say that this error is my correction only. Correction only, the direction will change. In this case, I can see that my B point is prolonged from C points. So C point से B point आगे की तरफ है. I can say that my error is positive error. मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, मुझे H की जगह पे अब कौन सी हाइट मिल रही है, ये वाली हाइट मिल रही है, विच इज माई H कैपिटल H. ठीक है, सो दिस कैपिटल H इज माई पॉजिटिव एरर एंड आई वांट टू चेंज माई false reading into true reading. Then I will do one thing, I will just provide negative H correction to my value. Okay, is it clear to you or not? Yes, sir. Yes, sir. Right, well done. Now I am going to discuss this figure into a broad way like this. So I take this is my earth and I have a point A here. From the A point I take center here. Okay, so what is the radius of earth? What is the radius of earth? This is the radius of earth. AO is the radius of earth. Okay, so I think diameter of earth is 12,742 kilometer, if I'm not wrong. ठीक है, now Yes, sir. I take a state which is my, as I told you earlier, this is my horizontal line, and at the line I am going to take the reading B point. Okay, if I place my instrument at A point and I'm going to check my C point, but unfortunately due to curvature of earth I am taking the reading of B point. यही तो हो रहा है ना, मुझे C point की रीडिंग चाहिए, but due to horizontal line which is not parallel to my level surface, I am taking the reading of B point. So I can say that this BC is my error. Okay, this BC is my error and I want to remove this BC error from my reading point. Okay, so I extend this point up to here. So apply the Pythagoras theorem. Just apply the Pythagoras theorem in this figure. I can say that this is the diameter of earth. Okay, please note this is the diameter of earth. Don't confuse with this. This must be your 2r. This must be your 2r or not. हो सकता है ना, दो रेडियस के बराबर होगा ना ये. Yes, sir. Yes, sir. 2R. Right. Apply the Pythagoras theorem in triangle OAB, which is right angled at A. ठीक है, एंगल A आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा. Apply the Pythagoras. I can say that my BO square, which is a hypotenuse, gives with the value of AB square plus BO square. Is it right?
Is it Yes, right sir. or not? Okay, thank you. Now divide this BO into a part. So this BO must be your BC plus CO to the whole square. Okay, this B, here this my B point and here my O point. I can see that BC plus CO gives the value of BO. तो यहाँ पे BO मैंने लिख दिया. Now सर वो AO होगा वहाँ पे सर BO स्क्वायर इसकी जगह AO स्क्वायर very ए good, बी स्क्वायर प्लस very बी good. स्क्वायर। Okay, is it okay now? यस सर Okay, right. Now AB, what is my AB? AB is my distance. Okay, AB is my distance. Okay, for this distance can I take this is as a small d, capital D? Why I take this as capital D? Because whenever you are going to conduct your geodetic survey, your length will be very high. So I can say that this distance, which is A to B, is measured in kilometer. है कि नहीं है? जियोडेटिक सर्वे हम तभी करते हैं जब हमारे पास एरिया बहुत ज्यादा होता है, तभी तो हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं. फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू टेक माई ए बी एज डी स्क्वायर एंड डी जो है वो हमारा किस में, किलोमीटर में है. राइट. नाउ कम टू द पॉइंट ए ओ. ए ओ इज योर आर स्क्वायर एंड अगेन दिस ए ओ मस्ट बी इन योर किलोमीटर. रेडियस ऑफ अर्थ आपका किलोमीटर में ही होगा. Yes, sir. ठीक है. अब नाउ चेंज दिस होल स्क्वायर. इस होल स्क्वायर को कन्वर्ट करिए सिंपल इक्वेशन में. दिस मस्ट बी योर बी सी स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर प्लस 2BC मल्टीप्लाई CO इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर. CO, what is the value of CO? What is the value of CO? CO is again R. So I can just put here R square plus 2 into BC CO, again here come to CO, then I can take this is a R. Okay, is equal to D square plus R square. R square to R square on the both side of equation will be cancel out to each other. Now we have remaining ones terms like BC plus 2BC into R gets the value of D square. Okay, this is okay to you? This is your final equation. Now I have to Yes, sir. put some correction here, some small corrections which is observed practically. अब मुझे एक चीज यहाँ पे प्रैक्टिकली जो देखनी है वो ये है कि BC कितना होगा. मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया था. दिस मस्ट बी माई H. क्या है? मेरा H है. ये H हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपने लेवलिंग में पढ़ा होगा. हम टेक कैसे लेते हैं इसको? मीटर में लेते हैं. हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू कैसे लेते हैं? मीटर में लेते हैं. ठीक है. और इतनी बड़ी वैल्यू को H है, तो अब देखो अर्थ में यहां से यहां जाने में आप अगर आप ध्यान दो तो कितना पेरीमीटर होगा. दिस मस्ट बी योर वेरी वेरी हाई डिस्टेंस इन लाख किलोमीटर या करोड़ किलोमीटर भी हो सकता है. ठीक है, यहां से यहां जाने में तो इतना तो मतलब ये आएगा नहीं. ये तो आपको फिगर वाइज समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बनाया क्योंकि अर्थ तो आपको बहुत बड़ा है ना. तो वहां पे जो हमें ये BC ऑब्जर्व करने को मिलता है, दिस BC ऑब्जर्व इन मीटर्स में हमें ये ऑब्जर्व करने को मिलता है. जो ये एरर है ये हमें मीटर्स में ऑब्जर्व करने को मिलता है. मैं बता रहा हूं आपको, समझ रहे हो आप क्या बोल रहा हूं? बेटा समझ रहे यस हो? सर अब BC स्क्वायर आपका क्या है? मीटर स्क्वायर होगा. 2BC आपका क्या होगा? मीटर इंटू किलोमीटर होगा. R तो आपका किलोमीटर में. अगेन D स्क्वायर आपका क्या है? किलोमीटर स्क्वायर है. ठीक है, ध्यान दे रहे हो? अब यहाँ पे अगर Yes. आप देखोगे LHS में आपका किलोमीटर स्क्वायर में वैल्यू है. ओके, एंड सॉरी RHS में आपकी किलोमीटर में स्क्वायर में वैल्यू है.
LHS में आपका मीटर स्क्वायर प्लस मीटर इंटू किलोमीटर में वैल्यू है, इक्वल टू होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए 1 मीटर या 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, और आपका जो स्टाफ होता है, अगर आपने देखा भी होगा, जो स्टाफ आपका 4 मीटर तक होता है। सपोज ये एरर बहुत कम है, 4 मीटर, एक बार बताइए 4 मीटर को कन्वर्ट करो 1 किलोमीटर के हिसाब से तो कितना होगा, इट मस्ट बी योर 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल किलोमीटर, होगा कि नहीं होगा, यानी कि 4/1000 किलोमीटर। एक सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। अब आप इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके कितना होगा, 16/1000 इंटू 1000 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू होगी ना, दिस इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल, और यू कैन से वेरी वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल होगी ये वैल्यू एज कंपेयर टू योर किलोमीटर स्क्वायर विच इज पुट अप राइट हैंड साइड। भाई Yes, sir. लेफ्ट हैंड साइड में जो मीटर स्क्वायर है ये जस्टिफाई कर ही नहीं रहा है किलोमीटर स्क्वायर को, क्योंकि तो बहुत ही छोटी वैल्यू हो जाएगी। सो इन दैट केस, फॉर सिंप्लिसिटी, आई कैन जस्ट रिमूव दिस मीटर स्क्वायर फ्रॉम द मेन इक्वेशन। ओके, now I have only two terms left here. 2bc into r gives you the value of d square, and this is my final equation after the correction. Okay, so this is my exact equation and this is my approx equation. So please note these two terms, because in MCQ this is very very specific, specifically asked and repeatedly asked in the previous year examinations, कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू से फाइंड आउट करना है करेक्शन या फिर अप्रॉक्स वैल्यू से फाइंड आउट करना है। अब देखिए BC, अगेन BC in the form of meter. Now I just change this is 2r multiply BC equal to d square. BC in meter gives you r square by 2r, sorry d square by 2r। तो ये समझ में आ गया आपको। तो दिस इज माय correction of curvature, is it clear, and this is my approx correction. So one thing I think you are very clear about the correction of curvature of earth, right? Yes, sir. Thank you. Now I am going to discuss the different phenomena, and different phenomena is related to your refraction correction. क्या है, रिफ्रैक्शन। अब ये रिफ्रैक्शन क्या होता है, इन योर फिजिक्स यू स्टडीज दिस कंसेप्ट, ये फिनोमिना आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? रिफ्लेक्शन वर्सेस रिफ्रैक्शन। चलिए, एनीवन वांट टू कंट्रीब्यूट हियर इज वेलकम, इज मोस्टली वेलकम। Let me answers from, okay, I will take answer from Shubham Purohit. Shubham, wanna you contribute here something? शुभम बताइए बेटा, क्या होता है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन? अजय भट्ट यस सर। बताइए सर रिफ्लेक्शन, दोनों के बारे में बता दीजिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के बारे में। सर रिफ्लेक्शन सर bouncing back of light when it approaches a smooth surface, and refraction is
बताइए बताइए, मैं तब तक फिगर बना रहा हूँ. सपोज यू हैव ए हार्ड मीडियम, और ये हार्ड मीडियम इतना हार्ड है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है. ठीक है. सो इन दैट केस द 100% रेज 100% रेज ऑफ लाइट कमिंग टू दिस सरफेस, सपोज यहां से आपकी 100% इनकमिंग रेज है, तो ये 100% रेज को क्या करेगा, जिस एंगल में आया उसी एंगल में क्या करता है, Bounce back. बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा. So this phenomena is known as reflection. It is depend on the medium. Again, I am talking about the medium. ठीक है. तो ये हमने एक मिरर का एक एग्जांपल है हमारे पास. सो यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे हम इंटरेस्टेड है ये एंगल के बारे में, जिस एंगल से ये टकराया. ओके, सपोज ये एंगल इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ये आपका फाई मान लेते हैं, ये आपका रिफ्लेक्शन एंगल हो जाएगा. तो इन द रिफ्लेक्शन, incident angle is equal to your reflection angle. Is it clear? Yes, sir. But in case of reflection, this medium, if I change the medium, suppose I am taking such type of medium which is not hard enough. जब hard नहीं होगा तो it must be your plastic, it must be your flowable. it flowable material को हम क्या कहते हैं, flowable material को हम fluid material कहते हैं, और viscoplastic. Okay, so these are the different phase of materials. अगर इस फेज में कोई मटेरियल है, so it will not, तो जो आपका 100% रेज आ रही है लाइट्स की, इसको ये 100% रिफ्लेक्ट नहीं करता है. ओके, सो इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे टूवर्ड और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अब ये नॉर्मल क्या चीज है भाई, नॉर्मल हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, लाइक दिस इज योर नॉर्मल लाइन ऑफ द सरफेस, दैट्स व्हाई इट इज 90 डिग्री, नॉर्मल लाइन ये हो गया. अब इससे क्या करेगा, यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी. एक पॉसिबिलिटीज में लाइट को वो अवे कर देता है, और एक पॉसिबिलिटीज में लाइट को टुवर्ड द नॉर्मल कर देता है. तो ये अवे कब करता है, जब डेंसर से जब डेंस, अगेन सेम थिंग, जब मैं मीडियम की बात कर रहा हूँ तो इट इज डिपेंड ऑन द डेंसिटी. डेंसिटी से हम जो मीडियम है उसको डिफाइन कर सकते हैं. डेंसिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मीडियम की, किसी भी मटेरियल की डेंसिटी एक प्रॉपर्टी होती है. ओके, सो हम इस फिनोमिना को डेंसिटी से डिफाइन करते हैं कि जो हमारा मीडियम है उसकी डेंसिटी क्या है. अगर ये नॉर्मल से अवे हो रहा है, इट्स मीन्स माई डेंसिटी, दिस इज माई डेंसिटी 1, जो कि मेरा एटमॉस्फेयर की मान लीजिए अभी. ठीक है, जो सरफेस के ऊपर है, और ये मेरा एक मीडियम है, लाइक दिस इज माई मीडियम, यहाँ से यहाँ तक इसकी बाउंड्री कंडीशन है. सो दिस इज द डेंसिटी 2, और यहाँ पे जो है ये डेंसिटी 3 है. इफ माई डेंसिटी 2 इज लेस देन माई डेंसिटी 1, मतलब क्या होगा कि मेरा जहां से मेरी रेज आ रही है दैट इज in the form of harder material as compared to the material in which the rays goes penetrate. तो उस केस में ये डाइवर्ट करती है. अदरवाइज इफ D3 is greater than D1, then this type of figure you can see in the case of refraction, D1. Okay, so this is the physical phenomena. I think now you are clear about the refraction. बताइए. Yes, sir. Okay, so from here you understand only one thing, that if your density is higher, then your rays will bend toward the normal position, normal line. Now come to the point where we have this planet Earth. As you know, this is my planet Earth, and at this point I just choose, this is the center point, this is my the point from I am taking the reading. Okay, A point से मैं reading ले रहा हूँ.
तो ए पॉइंट से जब मैं रीडिंग लेना चाह रहा हूँ और मैं किसी सामने की चीज़ की रीडिंग लेना, बिकॉज आई एम टेकिंग दैट आई एम गोइंग टू टेक सी पॉइंट हेयर, I want to see point here at the same height, but unfortunately I am going to see my B point, and this AB is my horizontal line. ये मैंने बोला है ना अभी आपको, यही चीजें हमने पढ़ी थी कर्वेचर के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस AB की पोजीशन को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जबकि हमें ऑब्जर्व क्या करना चाहिए था, सी पॉइंट को ऑब्जर्व करना चाहिए था। तो उसके लिए हमने क्या पढ़ लिया, कर्वेचर ऑफ अर्थ का करेक्शन पढ़ लिया। बट एक्चुअल में होता यह है कि आप जब यहां जाते हो तो एटमॉस्फेयर क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर क्या होता है बच्चे, डेंस होता है, ठीक है। उसकी वजह से आपकी जो लाइट है, लाइट रेज है, वो आपकी बेंड होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। अब ये डिपेंड करता है, मैंने आई टेक 3 पॉइंट्स हियर, ये 3 पॉइंट्स 1 2 3, ठीक है, पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3, इट इज डिपेंड ऑन द साइट कंडीशन। जैसे जैसे साइट होगी वैसे वैसे ये डेंस होगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर के हिसाब से डेंस होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जैसा एटमॉस्फेयर होगा वैसा होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमारे पास वी हैव not a exact solution for this type of problem. We don't have any exact solution to find that what is the position of A, 2 and 3, है ना। यहाँ पे तो हम exact position नहीं निकाल सकते, because this is depend on the density of atmosphere, and the atmosphere change from site to site. So what we will do a arbitrary number here. So in that case, देखो यहां से मेरे को पॉइंट चाहिए था B, लेकिन मेरा डेंसिटी की वजह से, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी से मेरा जो पॉइंट आएगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आया सपोज, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे आया, तो मेरा ये पॉइंट क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2 पे आया, 3 पे आया तो B1 B2 आ जाएगा, ठीक है। बट नाउ आई एम नॉट टेक दिस अनदर पॉइंट। सो इन दैट केस आपका रीडिंग कहाँ आना चाहिए था, बी पॉइंट पे आना चाहिए था, बट आपका ड्यू टू कर्वेचर, ड्यू टू रिफ्रैक्शन, आप क्या देख पा रहे हो, B1 पॉइंट देख रहे हो, और B1 को आप समझ रहे हो B, मतलब आपको देखना था B पॉइंट, बट नाउ यू आर कंसिडरिंग योर B1 पॉइंट एज योर B। सो यही तो आपकी क्या हो गई, एरर हो गई। और ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ये कब होता है रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, व्हेन यू आर गोइंग टू कंडक्ट योर जियोडेटिक सर्विंग। भाई आप जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा लोगे तभी तो ये चेंजेस मिलेंगे आपको एटमॉस्फेयर में, रिफ्लेक्शन तभी तो होगा। अगर आप 100 मीटर का सर्विंग कर रहे हो तब थोड़ी ना देखने को मिलेगा रिफ्लेक्शन। ओके, सो अब आपको क्या करना है, आपका पोजीशन हो गया है ये, लेकिन आपकी पोजीशन होनी चाहिए थी यहां पे। सो दिस एरर इज योर पॉजिटिव और नेगेटिव, द नेचर ऑफ एरर इज, व्हाट इज द नेचर ऑफ एरर, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि नेचर ऑफ एरर क्या हो गया, नीचे की तरफ आया ना B1 कहां की तरफ आया, नीचे की तरफ आ गया, तो नीचे की तरफ आया। सपोज ये ग्राफ है, दिस इज योर एक्स जेड, सिंपल सा वाई वाला, ठीक है। तो यहाँ हम पॉजिटिव लेते हैं एक्स एक्सिस को, फिर यहाँ हम नेगेटिव लेते हैं, सिमिलरली यहाँ हम पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ नेगेटिव लेते हैं। तो अगर हाइट आपकी नीचे की तरफ आ रही है, मतलब B से B1 पोजीशन पे आया, तो आपका एरर क्या हो गया, नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझ लो इसको। तो आपका करेक्शन यहाँ पे क्या होगा, देखो एरर क्या हुआ आपका, एरर B पॉइंट से आपका B1 आ गया, तो द ग्रीन कलर शोज द एरर, ठीक है। सो द एरर विच इज केम फ्रॉम B पॉइंट टू B1 इज योर नेगेटिव है, एंड दिस इज योर डिस्टेंस ऑफ B टू B1, ठीक है। फॉर द सेम थिंग वी अप्लाई ए correction is the vice versa of error in the positive in the different direction, which is your positive here, hence we apply the positive B1 distance, okay।
but due to different atmospheric condition, I am not able to comment exactly on what is the position of B to B1. For that case, I choose an empirical formula, or we can say a arbitrary number, and this arbitrary number says that B to B1 is 1 by 7 time of BC. तो ये आपको याद रखना है. Okay, BC is my error or the correction. This is my correction due to refraction will be equal to 1 by 7 time of correction due to curvature. curvature. Okay. Now I comment on combined correction. Combined correction in लेवलिंग ऑन जियोडेटिक सर्वे. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेवलिंग लिख लेता हूँ. लेवलिंग इन जियोडेटिक सर्वे. क्या कंबाइंड करेक्शन होगा? कंबाइंड करेक्शन will be the summation of your curvature correction plus refraction correction. Is it okay or not? Now Yes, sir. the combined correction I can take, this is a C combined correction. Curvature correction is the having the value of negative d square upon 2r plus refraction correction having a positive value of d square by 2r multiply by 1 by 7. ठीक है, ये बात समझ में आ रही? After solving this, I can say that combined correction will be equal to, यहाँ एलसीएम लेके इधर चले जाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ प्लस 1 करोगे, -7 + 1 gives the value of 6 divided by 7 in the form of negative d square upon 2r. So this is your final expression for combined correction in leveling whenever you are going to conduct your geodetic survey. So this sign is negative. Remember this fraction 6 by 7. Okay, and this is your d square. Now put the value of r, radius of earth. If you put the radius of earth like this, 6 upon 7 d square upon 12,742. After the solving this, you will get the value in your मीट. किसमें फाइंड आउट करेंगे आप? ये जो वैल्यू देखो, आपने सॉल्व क्या किया, ये किलोमीटर में है, डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है, तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो कंबाइंड करेक्शन से वो किस में आ जाएगी? किलोमीटर में आ जाएगी. आएगी कि नहीं आएगी? तो जो भी आप इसको सॉल्व करोगे वो किलोमीटर में आएगी. अगर आप इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो तो आपकी मीटर में वैल्यू आ जाएगी. ओके. Yes, sir. तो फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये डिस्टेंस किलोमीटर में रखना है, ये आपको किलोमीटर में रखना है, विच इज द वैल्यू ऑफ 12746. अब जो इसको सॉल्व करोगे आप, जिसको सॉल्व करोगे तो उसके बाद जो आंसर आएगा आपका वो मीटर में आएगा. इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि हम पहले ही मीटर में ले चुके हैं इसको. ओके. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो सम टाइम, अब इससे हम क्या सीखे? इससे हम एक चीज सीखे. देखो अब इसका यूज कैसे होता है वो हम आपको बता देते हैं. सपोज दिस इज योर अर्थ कर्वेचर एंड यू हैव ए टावर लाइक दिस हैविंग ए h1 हाइट. इस h1 हाइट से आपको कितना दिख सकता है? इस h1 हाइट से आपको क्या दिखेगा? ये इतना दिखेगा. ठीक है, क्योंकि कर्वेचर आ गया.
तो ये जो डिस्टेंस है ये मैंने क्या ले लिया, d में ले लिया, h1 मैंने किस में ले लिया, मीटर में ले लिया. So can I find the value of d from this h1 tower? This is my tower, okay? तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल कैसे होगा, हमने कर्वेचर को क्या बोला था, अपना हाइट बोला था, तो कर्वेचर आपका क्या है, कंबाइंड कर्वेचर इज -6/7 d²/12,742 ऐसा था. तो ये जो cc है इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए h1 मीटर में तो है ही, ठीक है, इक्वल टू -6/7 d²12742 एंड इट्स गिव द वैल्यू लाइक दिस. अभी देखो माइनस प्लस का क्या है, बिकॉज आई एम गोइंग टू डिफाइन, देखो h जो है, h टावर है, टावर की हाइट मुझे पता होगी, सपोज टेक दिस टावर हाइट इज 20 कितना मीटर लो बताओ, चलो आप ही बताओ. वॉच टावर, एक वॉच टावर है ये, वहां से आपको फाइंड करना है कितना डिस्टेंस आप देख सकते हो. तो सपोज इस वॉच टावर को मैं 50 मीटर लेता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, 50 मीटर इज इक्वल टू -6/7 d²/12742 किलोमीटर, है कि नहीं है, अजी है कि नहीं है, बताइए ना फटाफट. Yes, sir. ओके, एंड आई एम गोइंग टू डिसाइड दिस d इन किलोमीटर, मुझे ये d पता करना है. अब आप बताइए यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, और ये जो मेरी वैल्यू आ रही है वो किलोमीटर में आ रही है, तो मैं क्या करूंगा, इस मीटर को कन्वर्ट कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ किलोमीटर. 1000 से डिवाइड करो तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा किलोमीटर में. ओके, नाउ द वैल्यू विल बी 50 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 6 मल्टीप्लाई 42 गिव द वैल्यू ऑफ d स्क्वायर इन किलोमीटर स्क्वायर में आ रहा है अभी तो, क्योंकि d स्क्वायर. अभी क्या करोगे फिर आप इसको अंडर रूट कर दो, तो आप अगर इस एक्सप्रेशन को अंडर रूट कर दोगे तो ये हट जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है. तो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ d विद दिस सिंपल एक्सप्रेशन. तो ये आपको पता चल जाता है. निकालो फटाफट Yes, जरा, sir. सॉल्व करो कितना आया d इन किलोमीटर. इफ यू हैव ए कैलकुलेटर विद यू प्लीज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस d. तो क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 1000 है इसको काट के सीधा यहाँ कर रहा हूँ, 12.74 आ जाएगा. फिर इसको हम यहाँ 3 कर देते हैं और यहाँ 25 कर देते हैं, फिर इसको हम फिर कट कर देते हैं, दिस इज 4.24 एंड इट इज 7. ओके, नाउ मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, फटाफट करने के चक्कर में फटाफट करो, मल्टीप्लाई करिए आप, 25 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4 2 7 अंडर रूट कर लीजिए, ये आपका आंसर आ रहा है. इसको करो जरा, कितना आया आंसर, 86.2. सो दिस इज योर 86.2 किलोमीटर इज द d वैल्यू. From this case you are find the value of d which is your 86.2 किलोमीटर, ठीक है. अब आपको 50 मीटर के टावर से यू कैन इजीली सी 86.2 किलोमीटर, एटलीस्ट 86.2 किलोमीटर विदाउट एनी एरर, approximately, because this formula is your approximately formula, right? राइट और रॉन्ग, बताओ बताओ जल्दी बताओ, फिर मैं रब कर रहा हूँ, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रब दिस. आर यू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now in case of triangulation you are identify the another station also. So मैं इसको बाकी सबको मैंने as I told you I am just going to rub this. Okay, now if you wish to identify the location of this point, तो अगर आपको ये जो B जो आपका ये H है, ठीक है, अभी आपने इसको 50 मीटर रखा तो आप 86 किलोमीटर देख पा रहे हो, तो 86 किलोमीटर देखने से तो आप ये H को तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका तो रेज यहीं तक जा रहा है. तो आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी रेज यहां तक पहुंचे, ठीक है, इस पॉइंट तक. दिस इज योर पीक पॉइंट, आई कैन टेक दिस पॉइंट एज ए C, दिस इज माय A point and this is my B point. So from the A point you need to raise your tower which is initially 50 meter
to the certain value such that you can easily see the point C. आप इजीली C पॉइंट को कवर कर लो, और जिससे C पॉइंट को अगर आपने कवर कर लिया तो आप B पॉइंट के ऊपर जो H है उसको आप देख सकते हो. So with the help of this phenomena, how we apply this equation in real situation? I just note down this reading from a tower like this. मुझे इस तरीके से एक लाइन बनानी है, ठीक है. तो मुझे क्या करना है, मेरे पास ये ए पॉइंट था और ए पॉइंट को मुझे आइडेंटिफाई करना है. तो ए पॉइंट को आइडेंटिफाई तो मैं कर नहीं सकता हूं. कैसे नहीं कर सकता हूं? क्योंकि मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस इज इन दिस डायरेक्शन. हॉरिजॉन्टल लाइन तो इस डायरेक्शन में है ना, तो ए पॉइंट को हम मेजर नहीं कर सकते. हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे एक टावर बिल्टअप करेंगे. अब ये टावर की हाइट कुछ इस तरीके से होगी. अब क्वेश्चन आपको देखो कैसे देते हैं. ये आपका हो गया स्मॉल एच, ठीक है. ये तो आपका बिगर एच था, तो इसकी वैल्यू आपको पहले से पता होगी. ओके, सो दिस इज ऑलरेडी नोन. अब आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी आपकी d1 डिस्टेंस, और ये आपकी हो जाएगी d2 डिस्टेंस हो जाएगी. तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा कि इफ यू वांट टू विश टू आइडेंटिफाई द पॉइंट्स A, C, B with a height of tower capital H having a distance D. D2 and D1 with the point C and A. So what is the value of H? तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके क्या चीज बन जाएगी, देखिए कैसे बनाएंगे आप क्वेश्चन इस पर पे. H जो आपका है H upon 1000 gives the value of 6/7 D1 square upon 2R Yes, sir. होगा. No. और यहाँ पे आपका कैपिटल H इज इक्वल टू 6/7 D2 स्क्वायर अपॉन 2R, ऐसा होगा ना. Yes, sir. ठीक है. Yes. अगर आपको डिस्टेंस दे रखी है तो आप इससे h निकाल दोगे, और अगर आपको h दे रखा है स्मॉल h और कैपिटल H तो उससे आप डिस्टेंस निकाल दोगे. ठीक है. तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दिया जिसमें मैंने क्या करना है कि आपकी डिस्टेंस d1 निकाली. ठीक है. तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वी टेक दिस इज योर 50 मीटर, तो हमारी डिस्टेंस d1 कितनी आ जाएगी 86.4 किलोमीटर आ गई. इसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू मेरे को पहले से गिवन रहती, लाइक आई टेक दिस इज 100 मीटर, तो इसकी वैल्यू भी कुछ आ जाती, शायद इसकी वैल्यू 112 किलोमीटर तक आ जाती. तो मैं यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि d1 प्लस d2 इज माई टोटल डिस्टेंस विच कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द स्टेशन A and B. Is it clear to you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So this is the end of today's lecture. In this lecture, we study our corrections related to curvature of Earth and refraction of atmosphere. And this is used to identify the points like A and B, which is affected by the curvature of Earth in geodetic survey, because in the first unit we are study triangulation and triliteration, and for the triangulation and triliteration the area which we cover is very high in kilometers. Okay, and for that purpose we understand the leveling in geodetic survey. तो उस लिए हमें ये कर्वेचर और रिफ्लेक्शन करेक्शन पढ़ना पड़ा. अंडरस्टैंड. सो जब हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट वीक में जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने स्टेशन के बारे में पढ़ा था, लाइक ए एंड बी पढ़े थे ना स्टेशन. अब उस स्टेशन को हम क्या कर रहे थे, फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ कर रहे थे और उसमें हम ट्रायंगल बना रहे थे. बट इन प्रैक्टिकली दे आर नॉट इन द फ्लैट सरफेसेस बिकॉज वी आर कवरिंग द जियोडेटिक सर्वे, एंड एट द जियोडेटिक सर्वे वी नीड दिस टाइप ऑफ टावर. ये टावर से क्या करते हैं, हम इस ए पॉइंट को आइडेंटिफाई करवाते हैं. इस टावर के ऊपर क्या होते हैं, इस टावर के ऊपर आपके कुछ सिग्नल्स होते हैं. ठीक है. अब ये सिग्नल दो तरीके के होते हैं. एक वो सिग्नल होते हैं जो लाइट इमिट करते हैं, उसको हम ल्यूमिनियस सिग्नल्स कहते हैं, एंड अनदर वन व्हिच डज नॉट इमिट लाइट्स, तो उनको हम ओपेक सिग्नल कहते हैं. क्या कहते हैं, ओपेक सिग्नल, OPQUE. ठीक है.
OPAQUE, ओपेक सिग्नल, और एक हमारे क्या होता है लुमिनियस सिग्नल्स होते हैं, right? So we have signals and towers. In the next lecture we'll cover this type of signals and towers. तो towers हमारे देखिए बेसिकली जैसे आपके सिग्नल वो वाले टावर्स होते हैं जिनसे आपके मोबाइल नेटवर्क आते हैं, तो वो हमारे कौन से टावर्स होते हैं बताइए? वो हमारे ट्रस्ट बेस्ड टावर होते हैं। इसके अलावा हमारे टेम्परेरी टावर भी हैं, एक तरीके से परमानेंट है। इसमें हमारे परमानेंट टावर भी होते हैं जो हमारे मोनूमेंट्स होते हैं, जैसे जो टावर्स हम सी के नियर पे बनाते थे। सी मतलब समुद्र के किनारे पे जो लाइट हाउस होता था वो क्या काम करता था? वो लाइट इमिट करता था, तो उसमें सिग्नल होता था। वो टावर कैसा होता था? हम उसे कंक्रीट का बनाते थे या परमानेंट स्ट्रक्चर बनाते थे, वो परमानेंट होता था पुराने टाइम में, तो दैट इज अ परमानेंट टावर। और आजकल जो टावर बन रहे हैं वो क्या है? टेम्परेरी टावर है। वो किसके बनते हैं? स्टील ट्रस के बनते हैं। सम टाइम फॉर आर्मी पर्पसेस जो जंगल में यूज होते हैं वो किसके होते हैं? टिम्बर के भी होते हैं, लकड़ी के बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर द टेम्परेरी। तो टावर हमें समझ में आ गया टावर क्यों यूज होते हैं। टावर इसलिए यूज होते हैं ताकि जो पॉइंट्स है हमारे जो ग्राउंड पर है उसको वो आइडेंटिफाई करे फॉर ए सर्टेन हाइट्स। अगर हम हाइट इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? ये हमारी D1 प्लस D2 इंक्रीज हो रही है। आपने फॉर्मूले से भी देख लिया होगा ये। Yes, sir. Okay, so this is the purpose of Yes, this lecture. I think now you are a very clear vision about the triangulation and triliteration and the terms related to these things like curvature of earth and reflection point of view. So with this notes I think I give you a chance for feedback if you want to say something about anything, मतलब something कुछ बताना चाहते हो तो वो बता सकते हो, otherwise you can leave now. कुछ बताना है आपको, कुछ पूछना है? Okay, thank you all, have a nice day, you can leave now. Thank you, sir. Thank you.